Namaskar. Welcome again to an aspiration, Mangala and Raghav Raj Bharti. So it's a very special episode today because throughout like last of a few episodes you have seen it is the discussion regarding the establishment and sustainability of a male dancer in terms of socio-economic system. And today, it was my plan and that is working on like we started this series of aspiration through the male dancer, and now onwards in very near future you are coming with the same topic from the female point of view. And I think this is the transition where we are getting both male and female together as a dancer without like any gender discrimination. And they are like one, but I think there are many who are taking dance as their profession, as their like a life, as their family, everything. And Raghavji and Mangalaji are one of them, and I think they are the symbol of integration in terms of many other things as well. Like we all know, the Mangala Didi, the disciple of Pandit Durgalalji of Jaipur Gharana, and Raghavji is the disciple of Pandit Birju Maharajji from Lucknow Gharana. So when they get married, so it was the integration of the two gharanas. I heard it from one of the talk by Uma Didi as well. She mentioned that, and yes, we know that. So, and not only that, they are from like Mangala Didi is from Maharashtra and Raghavda is from Hyderabad. So Marathi culture and Telugu culture, we know it is quite different, and also it's a completely like a amazing bonding, amazing couple they are, and how they are continuing their journey through their institution called Akriti, and we'll get to know many more from their own. And so thank you both of you. Welcome to like my show, An Aspiration. uh, so how was your journey in this field, starting from your learning, and that time how what was your situation, the मतलब वो सपोर्ट क्या था फैमिली में या सोसाइटी में, और उसके आगे जाके आप कैसे कैसे इसको आगे बढ़ा के चले, तो इसके बारे में मैं चर्चा करेंगे। जैसे कि ये जो था being a male dancer, I always think we should look at the mirror and we can see our image. But not only our image is the society. No, it's a complete. But initially we can see the view from like the mirror by our own. That's why when I started this discussion, I started with the male, but definitely I am like from the very beginning, we are equal. We are equal as a human being. And so here I just want to start with Raghavda so that it can go straight way through Mangala Didi and we can become the complete like family. Yes, thank you. तो राघवदा आप बताइए कि कैसा था, क्या है? और मेरा जर्नी तो एक तो घर में ही था, डांस का माहौल मेरे घर में। मेरे पिताजी डांसर थे। वाह, यहाँ हैदराबाद से, हाँ हैदराबाद से। लेकिन वो पर्टिकुलर क्लासिकल आर्ट फॉर्म करके नहीं था उनका, क्रिएटिव ऐसा पेंटर थे, वो आर्टिस्ट भी थे, तो क्रिएटिव करते थे। वो करते करते वो फोक एंड ट्राइबल आर्ट्स के ऊपर बहुत उनका रिसर्च वर्क चला है, और इंटीरियर ट्राइब्स के पास जाना, उनको लेके आना, उनका स्केचिंग करना और उनके साथ डांस करना। तो इस तरह से उनका बड़ा है काफी रुचि डांस के ऊपर। और मैं जब उस घर में पैदा हुआ, उठते ही वहाँ फोक इंस्ट्रूमेंट्स, घुंघरू, ये सब दिखते थे। सारे लोग आना जाना मेरे घर पे था, रिहर्सल्स होते थे। तो वो करते करते मेरा शुरुआत तो एक फोक डांस से हुआ है। मैं फादर के ग्रुप में फोक करता था, तो मेरे एज के हिसाब से मैं एट द एज ऑफ 5 आई स्टार्टेड डांसिंग। छोटा छोटा फोक उसी में समय से कहीं, हाँ। आप पहले तो 5 साल की उम्र से डांस किए, तो दीदी आपका कैसे, कब शुरू किए आपने? मेरी जर्नी बिल्कुल अलग है। हमारे घर में कोई डांस वगैरह था नहीं।
मेरे बड़े भाई नाटक का बहुत रहा, थिएटर और Maharashtra is म्यूजिक famous का for that. माहौल बहुत था घर में, क्योंकि कोई एक जैसे महाराष्ट्रियन फैमिली में होता है कि संगीत तो मतलब नाट्य संगीत इतना ये है, शुरू से हम सुनते हैं, तो क्लासिकल, सेमी क्लासिकल और नाटक, ये सारी चीजें, क्योंकि संगीत नाटक मतलब पूरे पुराने जमाने से चलते आ रहा है, और हमारे घर में इस तरह का चलता था, लेकिन कोई एक्टिव ये नहीं था पार्टी प्रैक्टिशनर। लेकिन मेरे भाई, बड़े भाई जो किरण कुलकर्णी, वो उनको बहुत नाटक का शौक था शुरू से। वो थिएटर काफी करते थे। उन्होंने फिर he decided to go to NSD, National School of Drama in Delhi, जो अभी भी है मतलब। तो वहां जाने के बाद, जब तक मेरा कोई डांस से इंट्रोडक्शन नहीं था, और वहां जाने के बाद कथक केंद्र और NSD पास में है ना, तो उनको ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी कि डांस, खुद थिएटर में थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बहन को डांस के लिए इंट्रोड्यूस करूंगा। तब आपका उम्र क्या था? But he actually visualized, or he actually saw me in a dance field. आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, मतलब तब आपका उम्र क्या था कि जब आप, जैसे कि भैया ने 5 साल से शुरू किए, तो आपका? नहीं, मैं तो बहुत देर से, मैं तो जब कॉलेज में थी, कॉलेज में थी, और हाँ, जब 12th वगैरह किया था, तो जब से उससे पहले आप डांस नहीं किए थे? कभी डांस किए नहीं थे? मैंने कोई डांस नहीं। और सीधा कथक केंद्र एकदम, मतलब कॉलेज? नहीं, तो शुरुआत में थोड़ा सा वहां पर किया, क्योंकि वहां तो प्रॉपर होता है। वहां पर सबसे बड़ी बात है, मुझे मतलब किरण को प्रेरित करने वाली थी रीता दीदी, रीता गांगुली दीदी। जब केशव जी वहां पर थे एज ए डायरेक्टर, और रीता जी जो है वो किरण की लेक्चरर थी NSD में, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मतलब दे मस्ट हैव टॉक्ड अबाउट इट कि या बहन क्या मतलब बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। सो he told कि yes, I have a sister, so why she is there, what is she doing there, ask her to come, मतलब एक जो कोई क्वेरी फील करता है, तो रीता दीदी ने ये इसी तरह से आपका कथक केंद्र में मतलब एंट्री हुआ, और सीधा दुर्गालाल जी के पास? नहीं, सबसे पहले मैंने गुरु कुंदन लाल जी से सीखा। ओके 2 साल, हाँ जी। उसके बाद उनका मतलब वो नहीं रहे, उसके बाद गुरुजी ने 6 महीने के बाद ज्वाइन किया था। ओके, तब मैं गुरुजी से सीखने लगी। तो भैया का मतलब हैदराबाद से लेके कथक केंद्र का जर्नी कैसा था? वो मतलब महाराज जी तक कैसे, वो कैसे था? यहाँ तो मैं आर्ट कॉलेज भी जाता था यहाँ पर, और म्यूजिक कॉलेज है यहाँ हैदराबाद में। यहाँ कथक शुरुआत जो है मैं गोपाल राव जी से सीखा है। यहाँ पर वो जो है शंभू महाराज जी के शागिर्द है, और थोड़ा बहुत रामकृष्ण शुक्ला जी जो महाराज जी के मामा भी थे यहाँ पर। वो ही वाज द मैंने पहला उन्होंने कथक शुरू किया यहाँ पर कॉलेज में, रामकृष्ण शुक्ला जी, तो उनसे भी सीखा थोड़ा। फिर यहाँ से मैं डिप्लोमा करने के बाद फिर फादर ने कहा कि तुम इधर फोक कर रहे, पेंटिंग कर रहे, इधर क्या कुछ एक सीरियसली ले लो, कोई चीज, कोई एक आर्ट फॉर्म, तो तुम दिल्ली जाओ महाराज जी के पास। महाराज जी को जानते हैं, पिताजी मेरे दोस्त है, तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने नेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। तो कथक केंद्र जाना पड़ा, इंटरव्यू हुआ नेशनल स्कॉलरशिप का, उसमें कुंदन लाल जी, कुमुद जी, रेवा दीदी, नैना देवी, महाराज जी, सभी लोग थे वो इंटरव्यू सिलेक्शन में। उस वक्त 350 रुपए स्कॉलरशिप, 350 रुपीज, और 60 लोग आए थे पूरे कलकत्ता, बॉम्बे, पूरा इंडिया से, और 2 लोग सिलेक्ट हुए, उसमें मैं एक और एक राजकुमार दिल्ली से। तो ऐसा कथक के सीधा महाराज जी के पास मेरा एडमिशन हो गया। तो अब मैं दोनों से ही पूछ रहा हूँ कि फिर आप लोग मतलब कब से ये डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें मतलब कथक ही करना है? मतलब कथक तो कर रहे थे, पर ये प्रोफेशन, एज ए प्रोफेशनल, लाइक वी कैन बी
like take Kathak as a profession. So मतलब वो कैसे अपने आप हो गया या थोड़ा बहुत पहले से भी ड्रीम था या प्लानिंग था, उसके बारे में अगर थोड़ा सा कुछ? नहीं, पहले तो ऐसा कुछ नहीं। मैं पहले आया था कथक के में, ये तो बाद में आई, 2 साल बाद आई मंगला। मैं 1980 में मेरा एडमिशन हुआ तो महाराज जी के पास, मंगला 82 में आई। लेकिन कभी हम काम के लिए थे, लेकिन ऐसा इसके बारे में है कि हाँ, कथक को प्रोफेशन के जैसा अच्छा, देखो, ऐसे है कि यू गेट, आई मीन चलते चलते यू फाइंड आउट दोस थिंग्स, एंड फर्स्ट एंड सेकेंडली जब कथक केंद्र जैसे एक्सट्रीम प्रोफेशनल एंड रिनाउंड इंस्टीट्यूट में जब जाते हो और इतने रिनाउंड गुरुज के अंडर आप ट्रेनिंग लेते हो, तो देयर इज नो अदर वे यू look at automatically automatically you are in the path. Orientation is so that you take it and since we had left our homes and totally dedicated to Focus. dance. तो फोकस था। और इतने सीरियस थे महाराज जी के पास तो वहाँ कि कल के लिए कभी नहीं सोचा, हम इसी में है क्या ये भी नहीं मालूम हमें। नहीं, यही मतलब यही सब जानना जरूरी है। उसी में रहता था उनके साथ ही, और काम में, प्रोडक्शन में यही चलता था। लेकिन ऐसा इतना ऑर्गेनाइज्ड कल फिर इसके बाद करके ये करेंगे, फिर डिग्री होने के बाद पीएचडी करेंगे, ऐसा नहीं था। और करना है और करना ही था। तो बहुत यार मतलब और कुछ ऐसा कुछ है कि जो आप शेयर करना चाहेंगे ताकि आपका जो जर्नी था वो एक टर्निंग पॉइंट था, ऐसा कुछ कि दोनों में से कोई भी ऐसे महान गुरुओं के पास सीखना ही एक टर्निंग पॉइंट था। मेरा तो मेरे शहर से दिल्ली जाना टर्निंग पॉइंट ही रहा, और उसके बाद इतने बड़े गुरुओं से मतलब वो कोई कर्मा ही थे पहले के जो यहाँ मैं पहुंचे, आपको यहाँ लेके गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा विश्वास है। नहीं कि मतलब गुरु जी जैसे महान, मतलब सिर्फ गुरु नहीं, एक पिता, एक मतलब हर जगह जिसको रियली मेंटर गाइड जो कहेंगे उस तरह से। और ये वो कहते कहते, बोलते बोलते, सोचते सोचते, मतलब आपकी जो है वो लेने की पात्रता होनी चाहिए, वो जो बोल रहे हैं उसकी वो गहराई तक पहुंचने की, फिर तो आप समझ जाते हैं। मतलब सारी जो लेसन्स है वो अपने आप आपको मिल जाते हैं। वो तोड़े टुकड़े तिहाइयों में क्या क्या छुपा है राज, वो चीज है ना। बिल्कुल, तो वही ये एक उपलब्धि थी। इट वाज एन अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि जो मैं कहती हूँ कि वो हर वक्त गाइड होते रहते हैं, हम हर वक्त गाइड करते रहते हैं। तो इटसेल्फ इज एन यही सब। माहौल भी इतना अच्छा था। हमारे डायरेक्टर थे केशव कोठारी जी, बहुत ही एनकरेज करते थे। डॉक्टर जीवन पानी एंड डॉक्टर जीवन पानी जी केशव जी के बाद, तो बहुत एनकरेजमेंट था डायरेक्टर से। और क्लास में कभी भी वही, जैसे दिल्ली जाना मीन्स जैसे अब्रॉड गए, यहाँ से हर एक को यही मतलब अलग ही। तो महाराज जी के पास मिलता या नहीं मिलता, कैसे रहता कथक के, तो वहाँ सब अलग अलग इंडिया से सारे डांसर्स जब देखे तो वो कलकत्ता से भी डांसर्स थे काफी, तो ऐसे अलग अलग बांग्लादेश से, फिर अहमदाबाद से, गुजरात से, राजस्थान, मतलब डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से सब आते हैं, पर ये कहाँ सब एक साथ जुड़ जाते हैं, बस वही मतलब कैसे वो हो जाता है, वो एक अलग ही मतलब। नहीं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर इट इज। अच्छा, तो जैसे कि हमारा टाइम भी कम है और इसके लिए हमको सब कुछ, और जो मेन टॉपिक है मतलब एस्टैब्लिशमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सोशल। हाँ नहीं हम तो जा रहे हैं, क्योंकि नहीं देखिए जैसे मतलब समाज से ये कैसे कैसे आ जाता है, और ये हाँ तो वही तो है मतलब सोशल सपोर्ट कैसे मिलता है, और कौन सी बैकग्राउंड से हम लोग इधर आए हैं अब मतलब सभी ने, तो उससे ही तो ये हो रहा है। और फिर मैं ये जानना चाहूंगा
कि जैसे कि आपका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ हैदराबाद में आके, और मेरे ख्याल से हैदराबाद में तो साउथ इंडिया है और वहाँ कुचिपुड़ी के लिए फेमस है आंध्र प्रदेश, तो वी नो दैट। तो हाउ डिफिकल्ट इट वाज और लाइक टू एस्टैब्लिश कथक, और was it like easy, like as there was no competition? What about that means, like कैसे था वो माहौल जब आप लोग यहाँ काम करना शुरू किए, तो वो कैसा था उसके बारे में अगर? So Delhi, to leave Delhi, it was a tough decision, first of all. But we do wanted to decentralize the, this Yes, spread Kathak. it spread. And since we had this opportunity to bring it to Hyderabad, because since he belongs to Hyderabad, so we came here and we started our institute, Akriti Kathak Kendra. Yes, it was difficult since they have their own classical dance form. Yes. State has its classical dance form. So to establish something which does not belong to this state, as well as it is not even a part of, I know it's a Karnataka, it's not a Carnatic music, it's not a South Indian dance. Yeah, that's why. It is a North Indian dance form and totally different. Although Hyderabad has some Hindustani music ka culture hai isme, we do have that atmosphere. और काफी लोग हिंदी स्पीकिंग भी है, उर्दू है तो है ही है। तो वैसे मुश्किल हुआ था। और कथक केंद्र का जो एक इट्स व्हाट टू से, सर्व अंग से देखा जाता है, मतलब एक सिर्फ डांस प्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि हमको वहां पर डांस के साथ वोकल म्यूजिक, तबला, योगा, थियरी, सब कुछ एक, इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर कंप्लीट होलसम। यस, तो हमारी जो अवेयरनेस बढ़ी उस वजह से, और हम तो पार्टिसिपेट करते थे फेस्टिवल्स में, और इसके अलावा हम इतने सारे आर्टिस्ट को देखते थे, मतलब इतना खुल जाता है दिमाग कि आप सोचने लगते हैं, जब आप खुद करने लगते हैं तो वाकई लगता है कि अरे बाप रे, है ना। तो एक इतने लोगों से, इतने सुंदर कलाकारों से इंट्रोडक्शन होने के बाद, फिर यहाँ आने के बाद थोड़ा सा तो डेजर्ट लाइक, थोड़ा सा क्या काफी था हमारे लिए, क्योंकि हमने अपने आप को म्यूजिशियंस मिलना मतलब वही फाइनेंस की बात आ जाता है कि कैसे हमने यहाँ पर बोने की कोशिश की वो बीच को, तो टाइम तो लगा बहुत। बिल्कुल, म्यूजिशियंस तो काफी बार तो दिल्ली से भी बुलाए म्यूजिशियंस को, काफी प्रोग्राम वहां से बुलाते थे काफी साल, क्योंकि वहाँ प्रेजेंटेशन के हिसाब से वहाँ फाइनेंस आ जाता है ना, कि बजट कैसे आपको बैलेंस करना पड़ता है, कि जब अगर आप कोई ऐसे जगह पे है कि जहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है म्यूजिशियंस का या सबका, पर दूसरे जगह जाके काम करना थोड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ म्यूजिशियंस यहाँ पर है, लेकिन डांस के संगत करने वाले, वही कथक के साथ, कथक म्यूजिशियन, कथक के साथ अकम्पनी करने वाले जो म्यूजिशियंस है, हाँ, सारे गवर्नमेंट लेवल में फिर उनका स्टाइल पहले कुचिपुड़ी आ जाता था, पहले हमारा स्टेट का आर्ट फॉर्म, कथक तो बाद में है। हाँ, तो ऐसा बहुत ऐसा हुआ, लेकिन जहाँ प्रेजेंटेशन, एक कोरियोग्राफी, एक क्रिएटिव वर्क जहाँ होता था, फिर हम लोग दिखते थे वहां पर, अरे इनको दिया जाए तो ये क्रिएटिव कुछ करेंगे, तो इसमें हम तो इस तरह से हम हर जगह हमारी कामयाबी हुआ है कि हमारे जो भी चैलेंजिंग वर्क्स होते थे वो हम ही लोग करते थे, वो हमें ही आता था गवर्नमेंट से भी, और काफी फेस्टिवल्स तो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला था, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला बाद में मिला। When there are some opportunities where government is representing culture, then we have, I mean, he had this thing. Yeah. But as far as you are asking now, what is the finances which you managed in the initial? So ऐसे you also know that when it comes to some performance, where do we think of the saving something? We always कि अच्छे से अच्छे म्यूजिशियन हमको मिले, अच्छे से अच्छे प्रेजेंट करें, क्योंकि
वो सिर्फ अपनी बात नहीं होती है, वो हमारी ट्रेनिंग की बात होती है, हमारे गुरुओं की बात होती है, हमारी मतलब हम क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम किसके लिए इतना सोच रहे हैं, किसके लिए इतना सारा जर्नी पे चल पड़े हैं। मतलब वो एक फाइनेंस एक छोटी बात बन जाती है। हाँ हालांकि इट्स अ बिल्कुल। वेरी प्रैक्टिकल रीजन, आई मीन यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इनफ मनी विद यू, वो तो बात सही है, लेकिन जब Main आता है तो focus वो is the presentation and yes, no, definitely ऐसे ही art is होता है like ना। that. हाँ, पर इनके मतलब इनको लेके चलने के लिए फाइनेंस आ जाता है, पर डेफिनेटली मतलब साधना और कला वो एक अलग ही बात होता है, पर वहां पहुंचना कितना मुश्किल है वो तो सबको मतलब हम सबको पता है। पर जैसे कि अगर इसी को लेके कोई सब चल रहा है या तो चलने के लिए सोच रहे हैं, तो वो कैसे इसको बैलेंस करके आगे जा सकते हैं ताकि वो अपना जो पैशन है उसको आगे बढ़ा के चल सकते हैं। इसीलिए मतलब ये जो मैंने शुरू किए डिस्कशन। इट्स बहुत जस्ट अच्छा एन पहल है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज देयर इज दिस प्रैक्टिकल साइड एंड देयर इज दिस आर्टिस्टिक जर्नी। यस So one thing is practical where you don't have any other option, and you have artistic journey where you don't want to compromise on few things. यस So it's always a circus kind of thing. It is always a walking on the कॉन्फ्लिक्ट edge. या लाइक फाइनेंस एंड और आर्टिस्टिक दोनों को डेफिनेटली ये एक के साथ एक मतलब ऐसे ऐसे हो जाता है, पर इनिशियल स्टार्टिंग माइट बी वेरी डिफिकल्ट लाइक फॉर Most दोज। definitely. बहुत ही कभी हम वो फाइनेंशियली सोचे नहीं कि हम कितना रखे, कितना है। किसी भी तरह कथक का नाम हो, नाम कथक हो एस्टेब्लिश बिल्कुल होना बिल्कुल, चाहिए। और तो फिर इस वो आ चक्कर जाता में है। हाँ हाँ, सारे म्यूजिशियंस को, अच्छे म्यूजिशियंस को बुलाना, ज्यादा बुलाना, क्योंकि वो क्या साउथ इंडियंस में क्या आइटम वगैरह फिक्स रहता है उनका, और हाँ हमारा अलग है खुला रहता है। मतलब उनका खुला उनका डांस स्टाइल में ऑफ क्या है, प्रेजेंटेशन एंड स्टाइल ऑफ लाइक म्यूजिक एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट, बट Totally एनीवे लाइक different. हाँ तो वो तो उसमें फॉर्म वो के लोग हिसाब थोड़ा से अलग होता है। अलग दृष्टि से देखते हैं कथक को। बिल्कुल बिल्कुल अरे बिल्कुल। भाई ये, मैंने कहा नहीं भाई, हमारा आर्ट फॉर्म ही ऐसा है, प्रेजेंटेशन हाँ इसका अपनी अपनी पर ये जगह। है कि उनके पर्कशनिस्ट है जो नटोलदम करते हैं, जैसे स्पेशली मैं साउथ इंडियन डांसेस की बात कर रही हूँ, वहां पर दे नो ईच अदर्स कॉम्पोजिशंस इतना, दे कैन यू कैन हायर फ्रॉम यस दिस यस 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 इज, यस एंड फिर हमारे उसमें तबला हो, मतलब यू हैव टू इनवाइट, इवन इफ वी टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि हम किसी और तबले को भी ये करें, लेकिन पढ़ंत करने के लिए कोई हो नहीं हो, लेकिन फिर तबले के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है गाना सिखाना, अगर वो हमारे पर्टिकुलरली दोज म्यूजिशियंस आर नॉट अवेलेबल, मतलब इट इज ऑल द टाइम वेरी स्ट्रगलिंग। yes yes and matlab, I know, as I know, like I think you like as a couple you are fantastic, and that's why like for the presentation and all, like I think one support that you can get from Raghav Bhaiya or both of you, like Akriti, I must say Akriti get support like in terms of like stage decoration and all, because Raghav Bhaiya, I know he's a fantastic artist, and the sense of like the line drawing, painting and all. Strong aesthetics. He has very strong aesthetics. Yes, हम तो yes. But for महाराज जी के others, that is also an investment. Correct. You're right. You're absolutely right. See, yeah, we have this because since we are trained in Kathak Kendra, तो वो हमारा makeup हो जाता है, और मतलब I mean, our mind is oriented towards those things, and Raghav ji works. I mean, he has strong this quality of doing all these things. Can you just say anything? Can you show Bhaiya? Because I know like most of the dancers like in the field of Kathak, they know your work. But for others like who might be watching our show, they can see like how you do. yeah, Like, yeah, do you I'll have show you. anything with And you? एक एक उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ हाँ जी, please. कि जैसे कथक केंद्र थे, वहां से पास आउट हुए, फिर मैं प्रोडक्शन यूनिट में स्टाफ बन गया। आई बिकेम ए स्टाफ परमानेंटली इन द कथक केंद्र। तो उसके साथ स्टूडेंट लाइफ में भी महाराज जी के सारे प्रोडक्शन में
मैं पूरा सेट डिजाइन मैं ही करता था। हाँ, वही मैंने बोला कि वो एक एक्स्ट्रा पूरे एडवांटेज है आकृति का। पूरे कर्टन्स वगैरह बनाना, पूरे बैकग्राउंड, रामायण, कृष्णायन, गीत गोविंद, रूपमती बाज बहादुर, सारे बैलेस और क्रिएटिव शॉर्ट आइटम्स में भी। तो वो इतना किए करते करते उसमें भी फिर मेकअप, कॉस्ट्यूम, हाँ मेकअप में भी बहुत मेरा एक्सपर्टाइजेशन है। मतलब वही एक डांसर का मतलब एक डांस प्रेजेंटेशन में कितने सारे कुछ जुड़े हुए हैं, और मेरे ख्याल से वही हम सबको ये समझना है कि डांस मतलब नॉट ओनली टू परफॉर्म सम टुकड़ा तोड़ा ऑन स्टेज, नो इट इज नॉट लाइक दैट, इट्स अ लाइक so many things. So being a dancer, if you can like extend your like knowledge to most of it, then it's good. Otherwise you have to think how you can manage, and like to be professional, you have to like pay everyone like who are doing what. Yes, initially if you are just in your like building up like your institution and all, then मतलब सब एक साथ आप कुछ किए, मैं कुछ किया, या कोई स्टूडेंट कुछ किए, ये सब तो होता ही है, ऐसे ही तो एक बढ़ता है। पर आप बाद में जाके इसको आप भी आपको भी सोचना है कि ये भी एक प्रॉफिट मतलब काम है, तो इसके लिए इसको भी प्रोफेशनली डील करना है। तो मेरे ख्याल से ये सब तब जाके ये पूरा जो हमारा इंडस्ट्री है डांस मतलब वो आगे बढ़ेगा ना। तो इसीलिए मेरा सोच है। तो भैया मेरा स्केच का जो है, मेरे गॉडफादर तो जीवन पानी जी स्केच में स्पेशली उन्होंने बहुत गाइड किया, उन्होंने एंकरेज किया मुझे, एंकरेज करके उन्होंने सारे का अपने जयंती कथक फेस्टिवल्स में आपने देखा होगा पुराने, उसमें पूरे ब्रोशर इन्विटेशन, पूरे आइटम भी, नो फोटोग्राफ्स इन ब्रोशर में, पूरे मेरे स्केचेस रहते थे उसके अंदर। वो जो स्केचेस थे वो जो थीम डांस किया जा रहा है वो पर्टिकुलर ग्रुप एनी फ्रॉम एनी व्हाटएवर प्लेस इट कम्स फ्रॉम, तो वो थीम को स्केचेस में कम से कम लाइंस में कैसे रिप्रेजेंट कर वो उसमें दिखाना था। हाँ। वो जीवन ना मुझे ऐसे चैलेंजिंग देते बहुत। हाँ, मैं वही बोल रहा ये तो बहुत चैलेंजिंग था। हाँ, क्योंकि एक जापान से कोरियोग्राफी आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसका स्केच कर देना तुम। अरे उनके थीम का अरे मैंने कहा मैं अच्छा नो राघव, यू आर इंटेलिजेंट, दिस इज योर चैलेंज, तुम कर सकते हो। फिर वो ये भी करते थे कि तुम कर सकते हो, वो कॉन्फिडेंस पहले से दे देते थे। हाँ, बाउंड्रीज को पुश करने के लिए। फिर वो थीम पढ़ते थे, फिर मुझे स्क्रिप्ट देते थे, तुम पढ़ो इसको, तो फिर वो स्क्रिप्ट पढ़ता था, पढ़ के फिर मेजर जो है 2 स्केच बना के 2-3 बना के फिर वही प्रिंट होता था, चाहे कुमुद जी का आइटम हो, चाहे महाराज जी का आइटम, या पूना का कोई आ रहा है, बॉम्बे से आ रहे, कहीं से भी। तो इस तरह से ये स्केचेस का मेरा प्रैक्टिस होता गया, होते होते अब एकदम स्विंग में चला गया। एवरी डे आई यूज्ड टू डू स्केचिंग टिल नाउ, अभी भी वो तो मतलब वो मैं ये थोड़ा ये पर्सनल है कि वो स्केच करने के बाद आप दोनों उसको मतलब एनालिसिस करते हैं दीदी और आप दोनों मिलके, जे कि मैं जो सोच रहा हूँ ये ऐसे ही सही तरह से निकल के आ रहा है कि नहीं, ऐसे वो होता है नहीं आपको होता है। और प्लस खुद भी करती है मंगला, मैं स्केच करते हुए खुद करती है स्केचेस राउंडिंग पोजेस वगैरह, तो डांस में तो फिर मैं इमेजिन फिर शुरू करके फिर अपना काम करता हूँ। वाह वाह, फिर उसमें से वो तो रहेगा ना, वो तो फिर उसमें से मेरे की भाषा को जानते हैं तो वो क्रिटिसिज्म और जो वो है तो वो तो रहना ही है कि ये बिल्कुल एप्रिसिएशन आल्सो। हाँ, और अगर किसी जगह में दुविधा है तो there is conversation, there is, because this is our common this thing, no interest also, no very art and no? और किसी का सुंदर डांस भी देखता हूँ मैं, किसी और का भी आर्टिस्ट का, चाहे मेल हो फीमेल हो। हाँ, वो तो बात नहीं है। हाँ। चाहे कोई अदर आर्ट फॉर्म, अभी सिर्फ कथक, पहले कथक करता था, अभी सारे शैलियां करता हूँ, चाहे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी हो, किसी का ग्रेस, किसी का मूवमेंट्स मुझे बहुत सुंदर लगा
फिर मैं आई विल कैरी, फिर मैं आके वो विजुअलाइज करके मैं स्केच बनाता हूँ। अच्छा ठीक है, तो कोई स्केच देख सकता हूँ? कोई सैंपल है आपके पास अभी? आई शो। अभी तो हाँ, बाय द टाइम दीदी यू कैरी ऑन। मतलब ये तो भैया का जो स्केच का ये था, पर आपका इंस्टीट्यूशन आप कैसे संभालते हैं, इसके बारे में अगर चर्चा शुरू करें कि उसमें जैसे कि प्रोडक्शन, ट्रेनिंग, ये सब मतलब। वी हैव आकृति कथा केंद्र अपना इंस्टीट्यूट है, तो उसमें क्लासेस होते हैं, रेगुलर क्लासेस, एंड वी हैव रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं, and we have designed is Tarang and another is Antarang. Antarang is on the bigger scale because then we invite artists from other places, cities, and so because we want our students, basically it started with our students कि भाई हमारा ही डांस देखते हैं, इनको और अपनी सोच, अपनी समझ और इसको हॉराइजन्स को थोड़ा सा एंड एक्सटेंड करने का, because we got it, तो हमको लगा कि हमारे स्टूडेंट्स को भी इस तरह की कोई एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो हमने तरंग शुरू किया था। तरंग इज इन हाउस काइंड ऑफ थिंग। अंतरंग क्योंकि हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं, तो बाहर की अनेक इतना लोगों का कंट्रीब्यूशन है, इतने अच्छे परफॉर्मेंस है, गुरुज है। सभी फॉर्म या सिर्फ कथक, मतलब दूसरे हमने पहले इनिशियली वी स्टार्टेड विद कथक, देन वी एडेड म्यूजिक बिकॉज म्यूजिक इज इंटीग्रल पार्ट। पहले तो आपको संगीत को सोचना है, संगीत को समझना है, संगीत मतलब कितना पार्ट है अपने डांस का, कि एक डांसर को संगीत कितना समझ आना चाहिए, कितना उस तरफ उसका ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि हर थिंग एवरीथिंग इज इट मोटिवेट्स यू एंड वो आपको पुश करता है कि लेके जाता है संगीत। तो हमने संगीत भी ऐड किया है, मतलब वी हैव इंट्रोड्यूस्ड म्यूजिक आल्सो, and in future we will we will invite some other dance forms, classical dance forms also. So अंतरंग की ये बात है। तरंग जो है जो सीखते हैं बच्चे, वो सिर्फ फिर अपने रिलेटिव्स है, अपने क्लोज नीट फ्रेंड्स, ये वो सब इनको बुला के फिर be present there. So since it is a performing art, they must know, it's a all round training होना चाहिए। सिर्फ एक आप अपने लिए चीजें करते हो is not enough. We have to accommodate your next person. You know how to carry it on yourself on the stage. वो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस है, एक लीड करने का एक बात है, तो एक लीडरशिप क्वालिटी आती है, एक शेयरिंग की कैपेसिटी है कि शेयर नहीं करना चाहते बच्चे बहुत सारे, लेकिन यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, फियरलेस रहना है। तो इतने सारे ऑन द ईच लेवल, ऑन द साइकोलॉजिकल लेवल, ऑन द प्रैक्टिकल लेवल, ऑन द आर्टिस्टिक लेवल, सो इस तरह से सारी बातें को डील करने के लिए आना चाहिए एक स्टूडेंट को, चाहे वो इस बात को प्रोफेशनली ले या नहीं ले, लेकिन आपको इस आर्ट फॉर्म को सीखने के बाद आपको ये सारी चीजों से आप अवेयर हो गए एंड यू गॉट इट। तो हमको ऐसे लगता है कि ये सारी चीजें इस बात से होती है, तो इस तरह से हमने इंट्रोड्यूस किया परफॉर्मेंस, ताकि हैदराबाद की ऑडियंस है, हैदराबाद के लोग है, उनको भी एक मैसेज देना है, उनके साथ इसको जोड़ना है। हाँ। पर अभी जैसे शुरू किए थे उससे तो मेरे ख्याल से बहुत चेंजेस हुआ ना वहाँ, आपका जो मतलब बिल्कुल डेफिनेटली ये होगा ना, क्योंकि हम इतने साथ किसी चीज की कॉम्प्रोमाइज नहीं करके, किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करके क्यों हम जो चले हैं, तो उसमें डेफिनेटली आर्ट सीन में फर्क आया है। और कथक को एक मतलब एक मुकाम तक पहुंचने के लिए हमको नहीं गुरुजी हमारे हम मतलब बिल्कुल नहीं, आपके द्वारा वो हो रहा है, यही आपका ब्लेसिंग्स है, आपके थ्रू यू इट इज हैपनिंग। आई थिंक इट्स योर ब्लेसिंग्स एज वेल, लाइक
yes. Through our Gurujis, Gurus, Yes. it is happening. Actually, we are representing them. Yeah, that's लोग right, that's right. है ना, वही है और क्या है, आर्टिस्ट कथक को भी देखते हैं बस. काफी आर्ट लवर्स भी वेट करते हैं कब कब आ रहा है आपका फेस्टिवल करके. इवन गवर्नमेंट आल्सो तो एनकरेज मतलब फॉर इस द प्रोग्राम के लिए आप लोगों को वहाँ के स्पॉन्सर या गवर्नमेंट से सपोर्ट कुछ मिलता है, अभी मिलता है? स्पॉन्सर गवर्नमेंट से times- कुछ ऑडिटोरियम वगैरह हमको मिलता है. ओके. कुछ चीजें जो हम मुख्तसर जो भी हो सकता है. कभी हमको एसएनए से भी सपोर्ट मिला दिल्ली से, फिर कथक से, फिर आर्टिस्टों से भी थोड़ा भाई जो हो सकता है हम कंफर्ट जरूर देते हैं, बट रेम्युनरेशन उतना जितना हो सके उतना. It depends on the funds. फंड्स ऐसे नहीं होता कि हमेशा ही, और लेकिन कोशिश ये करते हैं कि everything should be on the decent Yeah. level because we also अच्छे- are performers, so we वहाँ know. मैं जैसे कि दिल्ली कलकत्ता में तो बहुत कम होता है टिकटेड शो, पर हैदराबाद में कैसा है? मतलब जो शोज होता है वो टिकटेड होता है या फ्री में होता है? नहीं, डांस म्यूजिक के तो नहीं होते टिकटेड. डांस होता है नहीं? म्यूजिक का बहुत ओ, नहीं. वहाँ भी? हाँ, बिल्कुल नहीं. कुछ थिएटर्स के होते हैं, कुछ हाँ, ये कलकत्ता में भी ऐसे ही है ज्यादातर, क्योंकि जैसे थिएटर जो शोज वाले होता है आए, वो तो टिकटेड फिल्म होता है, स्टार्स पर से. हाँ, हाँ, डांस शो म्यूजिक या डांस के म्यूजिक टिकट शो बहुत नहीं. कम होता है. नहीं. अगर हाँ, एक अलग सा एक बात है कि music and dance is a part of education. It's part of your artistic journey in as an audience also, and you need to pay for those things. This awareness is not there because see, for us to bring audience in the auditorium itself is a struggle nowadays. So where is the question to get them? You have the ticketed show and this, unless there is some glamour attached to it. Yeah. Unless it is theater is still, they are also struggling. They also try to make it. Along the line, we also should do something about it because, I mean, one should, but it is not so now, at least. Yeah, that's सब दिखा रहा हूँ भैया. थोड़ा हाँ. Wow. Yes, we all know because Maharaj's Anga Kabb's pictures are also done by you, no? यह अंग का भी पूरा किताब मेरा ही है. हाँ हाँ, पता है. तो नहीं, तो वही मतलब, yeah, only through the lines anyone can see that the movements and the postures. Wow, very beautiful, beautiful. ये अलग है. Is this the group production? No, these are all 8 classical dance forms. Oh, yeah, Yeah. Kathakali, yes, Manipuri, yes, I can see. Kathak. You can see Yes. ये सत्रिया डांस, ये वाला. हाँ, Kathakali. कथकली, Kathak. No, कथकली, Bharatanatyam. भरतनाट्यम, हाँ, कथक, Kathak. Odissi. Manipuri. मणिपुरी, Yes. कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम. Yes. Great. Beautiful. Wow. Lovely. Thank you so much. तो इस तरह अभी तो हमारा अभी टाइम खत्म होने जा रहा है. अच्छा, नेक्स्ट आने वाले पीढ़ियों के लिए आपका क्या सजेशन है? ये मैं सबसे पूछ रहा हूँ. ये एक मेरा सजेशन इसमें मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ, हर डांस टीचर्स जो है, हाँ, सो मूवमेंट्स जो करते हैं, मूवमेंट्स के हिसाब से जो भी होता है देखते हैं, लेकिन मैं लाइन के थ्रू एनाटॉमी डांस के लिए मैं जिस तरह से मैं स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि उनको वो समझने में बहुत इजी होता है, क्योंकि फोटो पर्सन को देख के बहुत फैसिनेट हो जाते हैं, अरे बहुत सुंदर है या सुंदर है, लेकिन लाइंस से उसको कैसे करना चाहिए. He knows 2 mediums, no? So for him it is an advantage. हाँ, both dance and painting. Yes, हाँ. it's तो easy. उसमें ये है. Yeah.
वही मैं पूछ रहा था कि आने वाले पीढ़ियों के लिए आपका क्या सजेशंस है रिगार्डिंग, क्योंकि अभी तो जैसे लॉकडाउन चल रहा है इसीलिए पूरा सब दूसरा हो गया, सब ऑनलाइन में आ गए, तो ये सब पर अब चाहे वो सिखाना हो या परफॉर्मेंस हो, इसके लिए मतलब आप क्या कैसे इसको महसूस कर रहे हैं और इसके लिए आपका क्या सुझाव है? ये is it about this period? Yeah, but क्योंकि like कुछ initially, like not only this period, like just like हाँ वही in this period, how we can like keep our mind like focused, and then definitely for all the time. Like it's not only for this period because this period will remove very fast. We hope so. But anyway, like in general, in general, what I feel is one should have faith in your action, and action should be very strong, and strong in the sense that if you believe in something, you believe in something, that's all. So this is on the philosophical level मैं समझती हूँ कि एक अगर आप बात को एक पकड़ते हो, क्योंकि किसी भी चीज में डेडिकेशन के अलावा कोई और रास्ता है नहीं, चाहे वो स्पोर्ट्स ले लो, चाहे वो आप लॉ पढ़ रहे हो, चाहे वो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी पूछती हूँ, आप लोग इंजीनियरिंग करते हो या मेडिसिन सीखते हो तो कितना घंटे आप उसमें डालते हो? आप तो इतना लंबा मतलब कॉलेज भी अटेंड करते हो, फिर आके इतना काम करते हो और इतना, तो उसमें से अगर आप डांस को उतने डेडिकेशन से, इवन दो इट इज नॉट योर फर्स्ट प्रायोरिटी, बट यू शुड हैव डेडिकेशन, क्योंकि डेडिकेशन के अलावा कोई बात पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल, चाहे वो किसी चीज में भी हो, किसी भी चीज में हो, खाली डांस या म्यूजिक के लिए, वही तो बात। तो वो एक होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, अपने कर्मों पर होना चाहिए, अपनी चीजों पर। मुझे एक ये लगता है, और one should not lose the patience in any circumstances, even if you are a student or would be professional or in profession or established. Patience, The yes, I challenges also feels like the are same. never ending. Challenges will be there on each stage. ऐसे होता नहीं है कि ये हो गया तो enough, I am done. It is not possible. ये तो आर्ट है, यहाँ इसमें तो अलग-अलग तरह से चैलेंज आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक अपने ऊपर एक भरोसा होना चाहिए। मुझे यही लगता है कि वो चीज कायम रखो, उससे बड़ी चीज नहीं है। अपने और गुरुओं को तो याद करना ही है, नमन करना है, उनके आशीर्वाद से सब होता है। और हमारे खासकर हमारी कला के क्षेत्र में हमको, क्योंकि गुरुओं से जो मिलता है वो अनपैरेलल है वो चीज। वही, क्योंकि मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, अगर मैं आज कुछ नया भी कुछ करे ना, तो किसके बेस पे मैं कर रहा हूँ, तो उनसे सीखे है तभी जाके मैं ये सोच सकता हूँ कि ये ऐसे भी हो सकता है। तो मैं जो भी कर रहा हूँ वो तो उसके ऊपर ही आधारित है, तो वो तो मानना ही मेरे ख्याल से। क्योंकि वो रास्ते पे तो आपको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, चल पड़े आप, तो आज में आजू बाजू नजारे देख रहे हो दूसरी बात है, लेकिन जो इनिशिएट किया तो और गाइड किया तो गुरु ही किया, गुरु है ना, उनका तो we dedicate everything to them only. फाउंडेशन स्ट्रांग। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बात करके, और खास करके मेल डांसर्स को भी बहुत एक अलग मैं कहना चाहता हूँ। मेल डांसर्स के लिए थोड़ा, मेल डांसर्स के लिए हमेशा स्ट्रगल है, शुरू से ही है। तो अपने जो आजकल के जैसे चल रहा है ना, उड़ा उड़ा ऊपर ऊपर का करना, ये तो उसमें ध्यान भी रखे और काम पे, और उसके साथ साथ कोई और एक चीज भी, आर्ट फॉर्म विच इज कनेक्टेड टू डांस, तबला या वोकल या कोई चीज या आर्ट या स्टेज, क्योंकि किसी ना किसी निर्भर रहने से कुछ ना कुछ चलता रहेगा साइमल्टेनियसली। कभी वो काम चला, कभी ये काम चला, ताकि हम ये कह नहीं सकते, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। अभी जिस अभी कोविड में अपन चल रहे, तो कल थोड़ा कम हो जाए, आर्ट परफॉर्मेंस कम हो गए, पूरे
नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात। हम काम कर सकते हैं। तो उसमें हम निराश नहीं होना, मन को छोटा नहीं करना। बिल्कुल। अरे क्या हो गया, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा और अच्छा होगा करके ही सोचना। और दूसरे काम जो भी आता है उस तरह से भी पैरेलली इंटरेस्ट रखने से अपने को पेन नहीं होगा। यस यस। बचाना है अपने आप। अपने आप को बचाना है काम, लेकिन मेहनत से करना। गुरु के पास गुरु जी का आदर रहना, गुरु के पास गुरु को सम्मान देना, वो सब रहना। उसके बावजूद भी अपना लक, जिस तरह से काम तो रुचि उस तरह से होते हुए तो मेल डाल भी अच्छा रहेगा, ताकि वही सिखाए भी मतलब परफॉर्म भी end of करे। the day ये नहीं तो we all are वो सीजन dancers. नहीं। No, end of the day we Yes. all are dancers, and like so it is a struggle for everyone, like it's not male or female, but yes, like in society, like when you are a dancer, you are a dancer. And how you face the struggles and like how you like like made your journey. So ये इसीलिए मैंने ये सिलसिला शुरू किए, और आप दोनों को बहुत बहुत मतलब थैंक यू फ्रॉम माय साइड। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। क्योंकि इनसे अच्छा मेरे मजा आया ख्याल, बातचीत करके। हाँ मतलब आने वाले सबको अच्छा लगेगा, और ऐसे ही मतलब सब बराबर होके चलना ही तो हमारा जीवन, तभी जाके जीवन चलेगा। तो मेरे ख्याल से इससे सबको आनंद मिलेगा, और जो भी कितना हो सके हम सब पॉजिटिव रहे, और बस आगे कला को लेके चले। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।